Good morning, students. Today we are going to start the 7th chapter, that is simple tenses. Okay, the chapter is on tense. Tense किसे कहते हैं हम लोग? In a sentence, the form of the verb which denotes the time of the action, that when the action has taken place, has the action taken place in the past or future or present. Okay, the form of the verb that denotes the time of this action is known as tense. Okay, so in this chapter we are going to learn about tense and the types of tense, and we are going to discuss the 3 types of tense here. Okay, 3 you can say subdivisions of tense. So let us start the chapter. Look, you have learned that in a sentence the form of the verb indicates the time when the action is taking place. Therefore we say that there are 3 tenses of a verb: the present, the time now, the past, the time then, and the future, the time to come. So I told you just that in a sentence the form of the verb indicates the time of an action when the action is taking place. Okay, सेंटेंस में वर्ब के किसी फॉर्म से हमें उसके टाइम का पता चलता है कि वो कब हुआ था, हो गया था पहले, या हो रहा है अभी, या बाद में होगा. ओके, सो इसे ही हम टेंस कहते हैं. ओके, टाइम ऑफ द एक्शन. देयरफॉर वी से दैट देयर आर 3 टेंसेस. what are the 3 tenses? Main parts of the tenses: the present. Okay, main types of tenses, or the main tenses are the present, the past and the future. The present means the time now. The present means अभी का समय, अभी हो रहा है या अभी होता है, ऐसे. The past, the time then, मतलब जो टाइम चला गया, हो गया था, कोई काम हो गया था, उसे हम past कहेंगे. And the future, जो होने वाला है, हुआ नहीं है अभी तक. ठीक है, दिस टेंसेस आर फर्दर सबडिवाइडेड. इन्हीं टेंसेस को बाद में और सबडिविजन्स हैं इनके. ओके, इन तीनों के, द प्रेजेंट, द पास्ट एंड द फ्यूचर, ऑल द 3 हैव डिफरेंट 4 subdivisions. Okay, like the present, the subdivisions of present tense are simple present, present continuous, present perfect continuous. The past simple past, past continuous, past perfect continuous. Future, simple future, future continuous, future perfect continuous. Okay, so these are the 12 subdivisions of these 3 tenses. Okay, so these are further subdivided. Okay, there's total 12 subdivisions are there. Let us now look at the simple tenses: simple present, simple past and simple future. So among the 12 subdivisions in this chapter, we are discussing about the 3 types, that are simple past, simple present, simple past, simple future. Clear? This chart gives us an idea about the verb forms of these 3 tenses. So look at this chart and let us know about it gives us the idea about the verb forms of these 3 tenses: simple present, simple past and simple future. Look, simple present, when the sentence is in simple present tense, then the first person means I, we. I, we के साथ क्या बैठेगा? verb का simple form, that is drive. I drive cars, we drive cars. बट सेकेंड पर्सन में यू के साथ भी ड्राइव सिंपल फॉर्म में बैठेगा. लेकिन थर्ड पर्सन के साथ, जैसे कि ही, शी और दे के साथ, ही, शी के साथ ड्राइव लिखने से उसके साथ एस या ईएस ऐड करना पड़ेगा. वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड होता है थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन प्लूरल के साथ नहीं होता. जैसे कि दे प्लूरल है, तो इसके लिए ड्राइव ही सिंपल फॉर्म में रहेगा, उसके साथ एस ऐड नहीं होगा. ठीक है. सिंपल पास्ट में क्या होगा? बस वर्ब का पास्ट फॉर्म लिखेंगे हम लोग. ठीक है, ड्राइव का पास्ट फॉर्म ड्राइव,
ड्रोव, ड्रिवन, ऐसा ना। तो आई ड्रोव कार्स, वी ड्रोव कार्स, मतलब ये पास्ट फॉर्म में लिखने से ये पास्ट में चला गया सेंटेंस। यू ड्रोव कार्स, यू ड्रोव कार्स, ये सेकंड पर्सन के साथ भी ऐसे ही बैठता है, फर्स्ट पर्सन के साथ भी ड्रोव, एंड ही शी के साथ भी ड्रोव कार्स, दे ड्रोव कार्स, सबके साथ पास्ट फॉर्म लिखेंगे हम लोग, ठीक है। थर्ड पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो। देन सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, आई शेल ड्राइव कार्स, वी शेल ड्राइव कार्स, फर्स्ट पर्सन के साथ हम आई और वी के साथ शेल लिखेंगे, ठीक है। और वर्ब का सिंपल फॉर्म ही रहेगा, बस शेल लिखेंगे बताने के लिए कि वो फ्यूचर है। फिर सेकंड पर्सन के साथ यू के साथ विल लिखेंगे, विल ड्राइव कार्स, यू विल ड्राइव कार्स, के। और थर्ड पर्सन ही शी के साथ विल ड्राइव कार्स और दे के साथ भी विल ड्राइव कार्स। बस फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग आई और वी के साथ शेल यूज करते हैं, ठीक है। और वर्ब का मेन फॉर्म ही रहता है, अंडरस्टूड। सो इससे आपको पता चलेगा कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंसेस रहते कैसे हैं, ओके। सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखो। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस कब कब होता है, लेट अस नो दैट, ओके। वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस कब, देखो, टू से समथिंग दैट इज ऑलवेज और जनरली ट्रू, ओके। जब हम किसी ऐसे चीज के बारे में बात कर रहे हो जो हमेशा के लिए सच है, okay, that is true for always, that is sometimes we can say that it is a universal truth, right? So it is generally or always truth. Like some examples are there, look at that, the earth is round, so the earth is round, it is generally or universal truth, right? It is truth, always truth, that earth is round, okay. So this is simple present tense. The formation, look at this, is there, which denotes simple present tense. The sun sets in the west, so the sun is a third person and that is why set के साथ SES has been added, okay. And the sun sets in the west, it is also generally truth, right? There is no betrayal. Then water freezes at 0 degree Celsius, this is also a general truth, okay. Then water is also third person and freeze is written with that S or es is added, then it is known as simple present tense, okay. So when you are talking about something that is always or generally truth, then it is known as simple present tense, it will be simple present tense. Now to describe something that has been happening for a long period of time and is still continue, okay. When you are speaking about something that is going on for a long time and still being continued, okay. कभी किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले से हो रहा है, अभी तक हो ही रहा है, ठीक है, पहले से स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है, ऐसा कुछ। लुक एट दिस, लुक एट द एग्जांपल्स। वी लिव इन गुवाहाटी, सो आज से रहना शुरू हुआ है थोड़ी, वो तो पहले से रह रहे हैं, आज तक वही रह रहे हैं, राइट। सो वी लिव इन गुवाहाटी, वो पहले से हो रहा है, अभी तक चल रहा है, ठीक है। ही इज अ टीचर, तो वो टीचर आज तो नहीं बना ना, वो तो पहले से ही टीचर है और आज भी है, राइट। सो ऐसे किसी सेंटेंसेस में हम सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। लुक, लिव एंड इज आर इन सिंपल, आई मीन प्रेजेंट फॉर्म, मेन फॉर्म, वर्ब का मेन फॉर्म। टू रेफर टू समथिंग दैट हैपन्स रेगुलरली और टू समथिंग दैट somebody does habitually, okay. Something that has been doing regularly, that someone is doing regularly, or someone's habit, okay. If you read the sentence and you get to know that this is a habit of someone or something and this is done regularly, okay. रोज होता है, ऐसे sentences को भी present simple present कहा जाएगा। जैसे a dog barks, okay, a dog barks, ये उसका it is habitual, that is why a dog barks, it's a general truth. He travels a lot, it's a habit, okay. And it both the sentence, these happen regularly, okay, regularly होता है ये सब, तो इसीलिए these are known as simple present tense. Now simple past tense, let us know that how simple past tense are used, I mean when the simple past tense are used. We use the simple past tense to refer to an action that has already been completed in the past, okay. किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो एक्शन, जो काम पहले ही हो चुका है, okay, हो चुका था, पास्ट में हो चुका था, अभी नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे कि इट रेन्ड यस्टरडे, कल बरसात हुई थी, ठीक है, आज नहीं। रेन्ड, देखो रेन का सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म, रेन्ड, ठीक है। शी एक्सरसाइज्ड लास्ट इवनिंग, सो लास्ट इवनिंग को उसने एक्सरसाइज किया था। सो दीज आर ऑल इन द सिंपल पास्ट टेंस, जो काम पहले हो गए हैं। टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट, किसी
पास्ट में हो रहे किसी हैबिट के बारे में भी बताता है सिंपल पास्ट टेंस। ओके, जैसे कि अभी हैबिट नहीं है, ठीक है, पहले था किसी का हैबिट, देन इट इज सिंपल पास्ट टेंस। जैसे कि माय फादर ऑलवेज प्लेड गोल्फ ऑन संडेज, अभी नहीं खेलते, उसके फादर पहले खेलते थे संडेज में, ठीक है, पापा पहले संडेज में गोल्फ खेलते थे लेकिन अभी नहीं खेलते, सो इट इज पास्ट हैबिट। नाउ एज ए यंग मैन आई ऑफन ट्रैक्ड अ लॉट, सो यंग मैन होने के बावजूद मैंने बहुत ज्यादा ट्रैकिंग किया है, तो यहाँ पर भी ये किया था, ठीक है, किया था, तो दिस इज ऑल्सो पास्ट हैबिट, सो दिस इज नोन एज सिंपल पास्ट टेंस। All these sentences are in simple past tense. Look, played, play, played, so it is also in past form, and tracked, so it is also in past form. Now look at this, adverbs and phrases like yesterday, a week ago, 4 months ago, etc. are usually added to sentences that describe past action. Okay, कभी कभी ज्यादातर समय सेंटेंस में ये सारे पीछे सेंटेंस के लास्ट में कुछ एडवर्ब्स या फ्रेजेस लिखे होते हैं, जैसे कि yesterday, a week ago मतलब कल, या एक हफ्ता पहले, 4 months ago 4 महीने एगो, ऐसे लिख के दिया होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज इन द पास्ट। अगर yesterday मतलब कल हुआ था तो तभी तो हम समझ जाएंगे ना, दैट इज इन द पास्ट फॉर्म। सो दीज फ्रेजेस आर यूज टू डिनोट द पास्ट एक्शंस। ओके, नाउ व्हेन वी एक्सप्रेस सम past habit we often use words like usually, always, never, often, sometimes, generally with the simple past tense. Okay, when we express some past habit, जब हम past habit जो यहाँ पर बताया हम लोगों ने, past में किसी habit के बारे में बात करें जो habit अभी नहीं है, पहले था वो habit किसी का, ठीक है, तब उन चीजों को बताने के लिए हम कभी यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, जनरली इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ओके, विद द सिंपल पास्ट टेंसेस देयर दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड। क्लियर? नाउ सिंपल फ्यूचर टेंस। So when do we use simple future tense? देखो, we use the simple future tense in order to say what we think or believe will happen in the future. So किस चीज के बारे में अगर हमें बिलीव है कि ये फ्यूचर में होगा, या फिर हम सोचते हैं कि ये फ्यूचर में होगा या हम करेंगे, ओके, तो तभी हम सिंपल फ्यूचर यूज करेंगे। जो काम हम करने वाले हैं, जो सोच रहे हैं कि करेंगे, या फिर जो हमें बिलीव है कि जो होगा, ठीक है, ऐसा अगर समझ में आए तो दैट विल बी इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। सो लुक एट द एग्जांपल्स। आई डोंट थिंक साक्षी विल जॉइन द कोचिंग क्लासेस, सो वो उसे लगता है, शी थिंक्स, ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि साक्षी विल जॉइन द कोचिंग क्लासेस, साक्षी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करेगी, ऐसा मुझे लगता है। आई बिलीव, या मुझे लगता है, आई थिंक कि वो फ्यूचर में होगा, राइट, तो दैट इज व्हाई इट इज इन द फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। एंड विल जॉइन इज रिटन, विल डिनोट्स सिंपल फ्यूचर, ओके, विल डिनोट्स फ्यूचर, और वर्ब का मेन फॉर्म बैठेगा, जॉइंड वगैरह ed कुछ नहीं लगेगा, बस जॉइन लिखा जाएगा, ठीक है, मेन फॉर्म जॉइन का जॉइन ही रहेगा। विल बताया है फ्यूचर बताने के लिए। आई एम श्योर यू विल परफॉर्म वेल इन द मैच, सो देखो इसे यहाँ पर बिलीव बताया गया है कि आई बिलीव दैट यू विल परफॉर्म वेल इन द मैच। सो दिस इज ऑल्सो ए फ्यूचर इंसिडेंट की फ्यूचर में तुम मैच में अच्छा करोगे, किया है नहीं अभी तक, करोगे, ये मुझे बिलीव है, आई एम श्योर, हाँ, ये मुझे ये बिलीव है दैट यू विल परफॉर्म वेल इन द फ्यूचर। सो इट इज फ्यूचर में किसी बात के लिए यहाँ पर बिलीव बताया गया है। ओके, यहाँ पर किसी की सोच बताई गई है, यहाँ पर किसी का बिलीव बताया गया है जो फ्यूचर में होने वाला है, ऐसा कुछ बता रहे हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, शैल आई और शेल वी आर यूज टू मेक ऑफर्स और सजेशंस। ओके, तो शेल आई और शेल वी ऑफर या सजेशन बताने के लिए यूज करते हैं फ्यूचर के, ठीक है, जैसे कि शेल आई एक्सप्लेन द रूल्स टू यू, तो मैं क्या तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं रूल्स को, तो ये भी सिंपल फ्यूचर कहा जाएगा, है ना, क्योंकि मैं कर दूं, किया नहीं है ना अभी तक, कर दूं। शैल आई, तो आई शेल को तो शेल आई बन जाता है, जैसे कि तुम अगर क्वेश्चन करने जाओ तो, है ना, तो ये एक ऑफर हो गया कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं क्या, ठीक है। देन इट्स गेटिंग डार्क, शेल वी टेक अ कैब, तो देखो रात हो रही है, हमें टैक्सी कर लेना चाहिए क्या, तो यहाँ पर तो सजेशन कहा जा रहा है, दिया जा रहा है ना कि कर लेते हैं क्या सजेशन, मतलब टैक्सी, तो अच्छा होगा ना हमारे लिए, तो ये सजेस्ट किया जा रहा है। और दैट इज
इन द सिंपल फ्यूचर कर लें क्या, किया नहीं है ना अभी तक, कर लें क्या, ऐसा shall we. Okay, so suggestion is denoted by this sentence, and these types of sentences are all in the simple future tense. Now in order to state will happen or will be done as a matter of habit or course. Okay, in order to state what will happen or will be done, क्या होने वाला है या क्या करने वाले हैं, ऐसे बताने के लिए एज अ मैटर ऑफ हैबिट और कोर्स. तो जैसे कि किसी चीज के बारे में हैबिट बताने के लिए कुछ किसी हैबिट कोई किसी का हैबिट होने वाला है या कोई कुछ करने वाला है, ऐसे बताने के लिए भी फ्यूचर सिंपल फ्यूचर यूज होता है. जैसे कि ड्यूरिंग द लूनर एक्लिप्स द रिवर विल बी टर्ब्यूलेंट. तो देखो ये तो हैबिट है ना, रिवर का हैबिट है, यहाँ पर हैबिट बताया गया है जो होगा ही. ठीक है, ये भी एक तरह की सच्चाई है जो जैसे कि कहते हैं ना ये तो होगा ही, तो होगा ही ऐसे बताने के लिए ये हैबिट बताता है और फ्यूचर बताता है होगा, है ना, अभी हुआ नहीं है लेकिन होगा ही, देन इट इज सिंपल फ्यूचर. जैसे कि ड्यूरिंग द लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण के समय रिवर विल बी टर्ब्यूलेंट, रिवर कांपेगा. ठीक है, मतलब चंद्र ग्रहण के समय रिवर में कंपन आएगी ही आएगी. तो ये एक रिवर की हैबिट है, एंड दैट इज हैबिट ऑफ द रिवर, दैट इज व्हाई इट इज simple future tense. Now when we decide to do something at the time of speaking, हाँ, जब हम बात कर रहे हैं तब हमने कुछ अगर डिसाइड किया है कि हम कुछ करने वाले हैं, ठीक है, कुछ करने वाले हैं, किया नहीं है, ऐसा अगर डिसाइड कर रहे हैं जब हम बोलने के समय, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ ना, तो अभी मैं डिसाइड करूंगी मैं थोड़ी देर बाद कुछ करने वाली हूँ, तब that will be in the simple future tense. जैसे कि there is a post box over there, I will post these letters. So देखो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि there is a post, मैं किसी से बात कर रही हूँ कि there is a post box over there, वहां पर एक पोस्ट बॉक्स है, मैं अपने लेटर्स इसमें पोस्ट करूंगी. ठीक है, तो देखो ये मैं बात करते समय मैं किसी ऐसे बारे में बात कर रही हूँ जो मैं करने वाली हूँ. ठीक है, मैंने डिसाइड किया है जो, और मैं करने वाली हूँ, किया नहीं है. तो ऐसे सेंटेंसेस में भी सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल होता है. ओके, विल पोस्ट, आई विल पोस्ट, ऐसे. ठीक है, दैट हैज बीन डिसाइडेड. सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर इज ओवर हियर. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज कॉन्टेक्ट मी regarding simple present tense, simple past tense and simple future tense. Okay, or tense also. And there are more three subdivisions has been divided, and more subdivisions are there, 9 subdivisions are there, which will be discussed in the next classes. For today the class is over. Thank you.